Hello friends, welcome to Bodhi Oracle Institute of Learning and welcome to PYQ revision series. The subject is Indian polity and the topic is constitution making and its salient features. So let us start. The first question is the authority of the Constitution of India flows from. The Constitution of India flows its authority from the people of India, where it declares in the preamble. In the preamble, it declares that we the people of India, right? Next question. Consider the following statements. The preamble is a part of constitution and two, it is not enforceable in a court of law. So preamble is a part of constitution. This is right statement. It was in Keshwanand Bharti case. In Keshwanand Bharti case, court ruled that it is a part of constitution and two, it is not enforceable in court. Hence the answer is C. Right? Moving on to the next. What was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? Right? So we know that right now the constitutional status of India is sovereign, socialist, secular, democratic republic. This is now at present, but this was not from the beginning. The word socialist and secular were added by 42nd constitutional amendment. So the exact status on 26th January 1950, India was a sovereign democratic republic. So this will be the correct answer. Moving to the next, this is a question of UPSC Civil Services 2020. The preamble of Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect. Next is not a part of Constitution and has no legal effect either. A part of Constitution and has the same legal effect as the other part. A part of Constitution but has no legal effect independently of other parts. Now, not a part of Constitution is incorrect. We know it was in Keshwanand Bharti case. A part of Constitution and has the same legal effect as in no, it has no legal effect. So now we are confused. B is not there, C is not there. Now we are confused in A and D. Now let us examine it very, very carefully. It says no legal effect. It says no legal effect independently of other parts. So it goes into more depth and this will be the correct answer. Moving on to the next one. The idea of liberty, equality and fraternity in the Indian preambles are inspired from. So this in Indian constitution is inspired from. We all know that this is inspired from French Revolution, right? French constitution. In fact, it goes deep to the French Revolution ideals, right? So these are very common things जो बार बार आती रहती हैं पेपर में. आगे चलते हैं. Which of the following objectives is not embodied in the preamble to the constitution? में से कौन सी चीज़ preamble में नहीं है? Right? तो preamble में liberty of thought है. इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है. लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी. इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है. राइट? नहीं है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ऐसा नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है. हेंस द करेक्ट आंसर विल बी बी, इकोनॉमिक लिबर्टी. राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. 2017 का ही क्वेश्चन है ये. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. बिल ऑफ राइट्स इंस्पायर्ड इंस्पिरेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स. ओके. फ्रेंच रिवोल्यूशन ने कहा इंस्पिरेशन फॉर इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल. एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. राइट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, दिस बिल ऑफ राइट्स इज फ्रॉम यूएसए. ये भी करेक्ट है. फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखा ही करेक्ट है. और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल सही डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आई. यानी ऑल थ्री आर करेक्ट. Moving to the next one, this is UPSC CAPF 2021 question. The preamble declares India as republic. Republic का मीनिंग क्या है? हेरिडेटरी हेड. इंडिया में हेरिडेटरी हेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं. इंडिया में नॉमिनेटेड हेड है, देखते हैं. इलेक्टेड हेड है, देखते हैं. मिलिट्री हेड है, बिल्कुल नहीं है. नॉमिनेट इलेक्टेड में रिपब्लिक मीन्स इलेक्टेड हेड. सो इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड. इंडिया का इलेक्टेड हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाई इंडिया इज ए रिपब्लिक. Moving on to the next one. Economic justice as one of the objectives of Indian Constitution has been provided in. Economic justice कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल भी नहीं. फंडामेंटल राइट्स में कोई इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं है. प्रीएम्बल में भी कोई बात नहीं है.
आगे देखते हैं द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स में नहीं है तो डीपीएसपी में कहाँ से होगा? द प्रीएम्बल इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। नॉन इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहाँ की गई है? बिल्कुल सही, प्रीएम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। मोर इम्पॉर्टेंटली डीपीएसपी में की गई है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज सीएपीएफ 2022 क्वेश्चन। विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंडिया यूनिटरी टिल्ट? इंडिया को यूनिटरी टिल्ट कौन सा फीचर देता है? ड्यूअल सिटीजनशिप तो इंडिया में है ही नहीं, रेफरेंडम इंडिया में हो ही नहीं सकता, स्टेट राइट टू सक्सीड इंडिया में है ही नहीं क्योंकि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन में ये नहीं होता कि आप सक्सीड कर जाए, हैंस इमरजेंसी प्रोविजंस, और इमरजेंसी प्रोविजंस है करेक्ट आंसर। इमरजेंसी प्रोविजन के समय क्या होता है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है, नो फेडरलिज्म, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एप्लीकेबल हो जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये भी सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन है। इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। इंडिया को क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं? नो सेंटर स्टेट डिवीजन, बिल्कुल गलत है, सेंटर स्टेट डिवीजन है। स्टेट्स है वीटो, बिल्कुल नहीं, कोई वीटो नहीं है स्टेट्स के पास। मोर फेडरल फीचर्स, बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा होता तो हम फेडरल होते, क्वासी फेडरल क्यों होते? मोर यूनिटरी फीचर्स, यस, इंडिया में मोर यूनिटरी फीचर्स हैं। इंडिया इज स्ट्रॉन्ग सेंटर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वासी फेडरल, राइट। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये बोधि हेराकल इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, यही टॉपिक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो हमें इस तरह से पढ़ना है कि शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट कट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, उसमें क्या क्या था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ सॉवरेन बॉडी फ्रॉम द मोमेंट इट वाज कन्वीन्ड। ओके, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, द authority of Constituent Assembly was derived from the Indian Independence Act 1947। तो ये बात बिल्कुल सही है, 1947 से ड्राइव की गई थी। ये बात, पहला स्टेटमेंट गलत है, वो सॉवरेन बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी सॉवरेन बॉडी? क्योंकि वो 1946 में बनी थी और कैबिनेट मिशन के अंडर वो बनी थी, राइट। इट वॉज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। इन 1947 इट बिकेम ए सॉवरेन बॉडी। 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बन गई जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, राइट। तो द करेक्ट आंसर विल बी ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रिगार्डिंग द प्रीएम्बल कंसीडर द फॉलोइंग। इट रिफ्लेक्ट्स द सोर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स और अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट होने के बाद अडॉप्ट किया गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही अडॉप्ट किया गया था इसको। इट एम्बॉडीज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस। यस, बिल्कुल सही बात है। इट मेंशंस फ्रेटर्निटी टू एश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये भी बात बिल्कुल सही है। हेंस द आंसर विल बी ओनली 3 स्टेटमेंट्स, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट प्रोसीजर कंसिडर द फॉलोइंग। सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी। यस, बिल्कुल सही बात है। कुछ अमेंडमेंट्स जो है जिनको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, जो कि किसी भी तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट नहीं करते, वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं। सम रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये बात भी सही है, कुछ को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो सेंटर स्टेट रिलेशन को जो जिनमें कि ऐसे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जो कि स्पेशल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं, राइट। सम रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ भी स्टेट का कोई भी प्रोविज़न इन्वॉल्व है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है या सेंट्रल स्टेट के बीच कुछ फिजिकल चेंजेस करने, तो 50% कॉन्करेंस चाहिए। रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स एटलीस्ट 50% चाहिए। ऑल अमेंडमेंट्स रिक्वायर प्रेसिडेंशियल एसेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है, हर अमेंडमेंट को प्रेसिडेंशियल एसेंट चाहिए होता है, ये बात भी सही है। ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के बारे में बात हो रही है। सो दे रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी रादर देन यूनानिमिटी। ये बात सही है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत डाइवर्स थी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। दे वर सीक्रेट एंड इनएक्सेसिबल टू द पब्लिक। बिल्कुल ही गलत है, ये ओपन है और वेबसाइट पर भी डली हुई है पार्लियामेंट के, वहाँ भी देख सकते हैं। दे इन्फ्लुएंस लेटर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, हमने कई केसेस में देखा है क्यों इम्पैक्ट करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को।
दे रिवील ए प्रेफरेंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और मेजोरिटिज्म, ये बात तो बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो इनहेरेंट ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 3 स्टेटमेंट्स। ये एक नए टाइप के क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, तो हम इन्हीं की प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग, दे आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, बिल्कुल सही बात है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स आर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स, दे इंश्योर सोशल इक्विलिटी, वो सोशल इक्विटी इंश्योर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर, नो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे हैव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उन पे मोरालिटी एंड पब्लिक हेल्थ एंड ऑर्डर की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, दे आर एनफोर्सेबल थ्रू इट्स, बिल्कुल सही बात है, दे आर एनफोर्सेबल थ्रू इट्स। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, हेंस ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। Moving on to the next one, consider the following statements regarding the philosophy of the Indian Constitution. Philosophy of behind the Indian Constitution की बात हो रही है। It seeks to transform a colonial society into a democratic society, ये बात सही है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। It prioritizes political democracy और social democracy, क्या ये बात भी सही है? क्या वो political democracy को प्रायोरिटाइज करता है? तो ऐसा नहीं है, सोशल डेमोक्रेसी की भी बात होती है, डीपीएसपी में मेंशन है इस बात का। इट बैलेंसेस इंडिविजुअलिटी सोशल जस्टिस, ये बात बिल्कुल सही है। इन्विसेस द स्टेट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, बिल्कुल सही बात है, इसलिए जो हमारा जो डिज़ाइन है वो स्टेट को सेंटर में रखते हुए है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1, 3 एंड 4 ओनली आर करेक्ट है, 2 इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं होती। Next question regarding the federal structure of India, consider the following statement. The constitution establishes a strong center, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। कैसे हमें पता चला? हमें पता चला इमरजेंसी प्रोविजन से और भी कॉन्करेंट लिस्ट से या रेसिडरी पावर्स से। रेसिडरी पावर्स लाई विद इन द स्टेट्स, बिल्कुल ही गलत बात है, रेसिडरी पावर स्टेट्स में नहीं है, सेंटर के पास होती हैं रेसिडरी पावर्स। इमरजेंसी प्रोविजन स्टिल द बैलेंस टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। States derive their powers directly from the Constitution. This is also right. States derive their power directly from the Indian Constitution. वो सेंटर के सबऑर्डिनेट ऐसा कुछ नहीं है. Hence 2 is incorrect. So 1, 3, 4 is the correct option. Moving on to the next one. Regarding the nature of democracy and we says in the Constitution. Nature of democracy in the Constitution. ये हाई आपको भी जब आप पेपर पढ़ेंगे आपको भी ऐसे कीवर्ड्स को क्वेश्चन पेपर में ऐसे हाईलाइट कर लेना है कि किस बारे में बात हो रही है, उसी को ध्यान में रखना है। इट इज़ लिमिटेड टू पीरियोडिक इलेक्शंस, क्या नेचर ऑफ डेमोक्रेसी जो पीरियोडिक इलेक्शंस तक है? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब देखिए जैसे हमने इसको पकड़ लिया रॉन्ग है तो हमने यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये भी नहीं हो सकता 1 and 4, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सब में 1, 1, 1 लगा हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं। इट एम्फोसाइजेज रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स, यस बिल्कुल, माइनॉरिटी राइट्स फंडामेंटल राइट्स में ही प्रोटेक्ट किए गए हैं। 29 आर्टिकल में 30 में प्रोटेक्शन है और आर्टिकल 14 भी कहता है इक्वालिटी। इट इनेबल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। और एक जनरल सी स्टेटमेंट है भाई, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेमोक्रेसी रहेगी तो होता ही रहेगा। तो 2, 3, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर एक भी हम एलिमिनेट कर पाते हैं या ठीक ढूंढ पाते हैं तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ही काम आता है। हमें ऐसा दिखेगा पेपर में कि 4 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, तो इनसे आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन से भी हमारी मदद करेंगे। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव, दिस इज द की। आपको ऐसे ही हाईलाइट कर लेना है पेपर में ताकि आप समझ पाएँ कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं क्वेश्चन। इट सीक्स टू डिसमेंटल एंट्रेंस सोशल हायरार्कीज, बिल्कुल सही बात है। यहाँ सोशल हायरार्की का मतलब क्या है? मेनली इंडियन टर्म्स में यहाँ पे कास्ट है और कुछ कुछ रिलीजन बेस्ड है, तो उनको हटाने की कोशिश करता है, बिल्कुल हटाने की कोशिश करता है। इट एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थ्रू राइट्स एंड पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है, एम्पावर करता है। आर्टिकल 29, 30 इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल और पॉलिसी से भी करता है। इट मेंटेन्स कंप्लीट कॉन्टिन्यूटी विद colonial governance,
बिल्कुल भी नहीं। अगर एक कॉन्टिन्यूटी होती तो फिर हमारी फ्रीडम किस बात की, बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत है। सो अब तीसरा गलत हो गया तो उसका मतलब ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ये दोनों तो नहीं हो सकते। दिस इज आउट, दिस इज आउट। इट यूजेज लॉ एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, ये लॉ को यूज करता है एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, जनरल सी बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, सती प्रोहिबिशन, और भी ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो 1 to 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए हमने एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ बनाई है। हमसे जुड़े रहें और ध्यान रखें, शॉर्टकट नहीं स्मार्ट कट से सीखना है। तो स्टे कनेक्टेड गाइस। हम और ऐसे ही हर टॉपिक पर इसी तरह से हम वीडियो बनाएंगे, ताकि इस सारी वीडियो सीरीज़ के एंड में आप करीब करीब 1500 क्वेश्चन के लगभग आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। सो